قومی سلامتی اور ملکی وقار پر کوئی سودے یا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ GCC ممالک کا بیرونی طاقتوں سے پناہ مانگنا تلخ ترین ستم ظریفی ہے۔ ایران خطے کی اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کا سب سے بڑا خواہش مند ہے۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ خلیجی ممالک بیرونی طاقتوں پر انحصار کر کے ماضی کے تلخ تجربات سے سبق سیکھیں، بتائیں ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی؟ خلیجی ممالک میں سینکڑوں ارب ڈالرز کے مہلک ہتھیاروں کے ذخائر کا کوئی دفاعی جواز نہیں۔ صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت پر کیوں خاموش ہیں؟ ایران کو ماضی میں بھی پڑوسی ممالک کی سرزمین سے جارحیت کا نشانہ بنایا گیا۔ دفاع وطن کا موروثی حق کسی بھی صورت کسی کے ساتھ سمجھوتے کا موضوع نہیں بن سکتا۔ آبنائے ہرمز میں عدم استحکام کے ذمہ دار امریکہ، اسرائیل اور حملوں میں شریک ممالک ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق خطے میں پائیدار سلامتی غیر ملکی مداخلت کے بغیر علاقائی ممالک کے باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ہرمز میں جہاز رانی عمان کے ساتھ جنگ بندی یادداشت کے مطابق ہوگی۔ خلیجی ممالک پر زور دیا کہ اپنی سرزمین مستقبل میں ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خلیج میں امریکی افواج کی موجودگی خطے میں تقسیم اور عدم استحکام کا باعث ہے۔ ایران کے اعلان کردہ راستوں سے ابنائے ہرمز سے گزرنا ممکن ہے۔ پاسداران انقلاب کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ خطے میں نافذ واحد قانون اب بھی اسلامی جمہوریہ ایران اور پاسداران انقلاب کی بحریہ کا قانون ہے۔ ایران نے ہرمز سے 4 آئل ٹینکرز واپس بھیج دیے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ جنوبی لبنان کے سرحدی قصبے بیت یاہون اور براشیت پر فضائی حملے، توپوں اور مشین گنوں کا بھی استعمال۔ حزب اللہ کے مطابق حملوں میں 2 افراد شہید، 1 زخمی۔ 2 مارچ سے اب تک لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 4110 سے زائد افراد شہید جبکہ 12000 سے زائد زخمی ہیں۔ حزب اللہ کا لبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلا تک ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا کہ تنظیم کا صبر کمزوری نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ثابت قدمی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دریائے لطانی کے شمال میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واضح کیا کہ لبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلا تک ہتھیار ڈالنے کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ وینزویلا میں ہولناک زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ 589 افراد ہلاک، 3000 زخمی، 50,000 لاپتہ۔ ہلاکتیں 10,000 سے زیادہ ہونے کا خدشہ۔ زلزلے سے ہر طرف تباہی کے مناظر، 70,000 سے زائد مقامی خاندان متاثر ہوئے۔ فلپینز کی زمین بھی لرز اٹھی۔ جنوبی علاقے میں زلزلے کے جھٹکے شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق گہرائی 65 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ 3 ہفتے پہلے بھی مینیلا میں زلزلے سے 80 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پھر ایران کو سویابین اور گندم بیچنے کا دعویٰ۔ زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہتے ہیں کہ امریکی کسانوں کے لیے دنیا بھر میں نئی مارکیٹس کھول رہے ہیں۔ نئی مارکیٹ خوبصورت ایران ہے۔ ایران کو غذائی اجناس میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم ایرانی رقم گندم، سویابین اور مکئی خریدنے پر جلد خرچ کریں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ارامکو نے 4 ماہ بعد تیل کی سپلائی شروع کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کے 2 بڑے آئل ٹینکرز میں راس تنورہ میں تیل بھرنے کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ٹرمینل 20 لاکھ بیرل تیل لوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $69 فی بیرل ہو گئی۔ برنٹ خام تیل $72 فی بیرل پر آ گیا۔ اٹلی نے نیٹو سربراہ مارک روٹے کے ایران جنگ میں امریکہ کی مدد کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق نیٹو سربراہ مارک روٹے کے بیان پر اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران تنازع میں اٹلی نے کبھی کوئی حصہ نہیں لیا۔ اٹلی نے امریکی فوج کو صرف ٹیکنیکل اور لاجسٹک سپورٹ دی تھی۔
ईरान जंग में पाकिस्तान का किरदार क़यामत तक याद रखा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि यौम आशूर ऐसे मौके पर आया है जब खित्ते में एक जंग जारी थी। ईरानियों ने सुन्नत हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शोहदा की याद ताज़ा कर दी है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की सुलह करवाई और पूरी उम्मत के सामने सुरखरू हुआ। कुर्बानी से दरेज नहीं करना चाहिए, हमेशा हक और सच के साथ खड़ा रहना चाहिए। 1300 के करीब जुलूस पूरे सिंध में निकलेंगे और तकरीबन 1650 मजालिस पूरे सिंध में होंगी। कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो ऐसे मौके ढूंढते हैं। हमें किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सिंध भर में 1300 के करीब जुलूस बरामद होते हैं और 1600 से ज़ायद मजालिस मुनक्किद हुई। कोई ख़तरा नहीं, लेकिन दुश्मन ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। वज़ीर आला सिंध की यौम आशूर के जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया, उन्होंने ताउन किया। डिफेंस में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यौम आशूर पर सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। जुलूसों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत की कराची में मरकजी जुलूस में शिरकत। सैयद मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस अहमद क़ायम खानी और दीगर मौजूद थे। मरकजी रहनुमाओं के जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात, इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। फारूक सत्तार कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने ये कुर्बानी अदल और इंसाफ का बोलबाला कायम करने के लिए दी। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सच्चाई की ताकत का दर्स देती है। सूबाई इदारों ने अमन कमेटियों के जरिए बेहतरीन इक़दाम किए। 50,000 से ज़ायद सेफ सिटी कैमरों के जरिए निगरानी की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जुलूसों की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था कि अज़ादारों के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए। स्प्रे गन से पानी का छिड़काव किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली अमन पर सबका शुक्रिया अदा किया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा किया। मरकजी जुलूस के इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग ली। डीजी रेंजर्स ने कहा कि अवाम के इत्तेहाद और हम आहंगी और उलमा कराम की काविशें काबिल तहसीन है। जुलूस के मुंतज़मीन ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को ख़िराज अक़ीदत। कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपना सब कुछ कुर्बान किया। ख़ामनेई ईरानी शोहदा के सरदार हैं। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत को कभी नहीं भुलाएंगे। लबनान में यौम आशूरा इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इजरायली फ़ौज के हमले के बावजूद लबनानी बड़ी तादाद में जुलूस में शरीक हैं। बैरूत समेत तराबलस, सैदा, सोर, बालबक, जोनिया, जहला और दीगर शहरों में मातमी जुलूस निकाले गए। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की यौम आशूर पर मजलिस अज़ा में शिरकत। ममदानी ने कहा कि यौम आशूर शोहदाए करबला की कुर्बानी याद करने और गौर व फिक्र का दिन है। मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हक, सच्चाई और वफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इंसाफ और सच्चाई की अलामत है। कलअदम कमेटी की अवामी हुकूक की आड़ में आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने की साजिश फिर बेनकाब। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले जाने वाले इश्तिहारी और इंतशारी कमेटी के अनासिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक डडियाल से रावलाकोट असलहा ले जाने वाले कलअदम कमेटी के 2 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद ने इंकशाफ किया कि वो इंतशारी कमेटी के शरपसंद सरगना मेहरान, अमान और नाजिम के लिए काम कर रहे थे। गिरफ्तार शरपसंद नईम ने एतराफ़ किया कि वो पहले भी तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सिब्बी, जोब, कोहलू और बारखान में ज़लज़ले के झटके शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड, गहराई तकरीबन 18 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ कोहलू से तकरीबन 60 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में था।
कराची के इलाके मलिक खोखराबाद में मां और बेटी की लाशें मिलने की तहकीकात। पुलिस ने मुतवफ़िया सबा के शौहर हनीफ को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद से लगता है खातून ने पहले बच्ची को कत्ल किया फिर खुदकुशी की। मुतवफ़िया के शौहर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ बेटे के साथ अपनी बहन के घर गया था, रात भर फ़ोन किए मगर बेटी और बीवी दोनों के मोबाइल फ़ोन बंद मिले। आज सुबह करीब घर से माँ बेटी की फंदा लगी लाशें बरामद हुई थीं। यूरोप में शदीद गर्मी और हीट वेव, हलाकतों की तादाद 300 तक जा पहुंची। शदीद गर्मी से सबसे ज्यादा स्पेन मुतासर। 4 दिनों में ये 212 अफराद जान की बाजी हार गए। फ्रांस में भी हीट वेव की तबाही, मासूम बच्चे समेत 52 अफराद गर्मी के बायस हलाक। पेरिस में गर्मी की शिद्दत के बायस 24 घंटों में हार्ट अटैक के 25 वाकयात। बरतानिया में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों में तशवीशनाक इजाफा। स्विट्जरलैंड में शदीद तरीन गर्मी, 80 साल रिकॉर्ड टूट गया। यूरोपीय यूनियन इजलास में स्वीडन की वजीर 3 माह का बच्चा साथ ले आई। स्वीडिश वजीर ने तकरीर भी की और बच्चे को संभालती रहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर माह की जिम्मेदारियां एक साथ अदा की जा सकती हैं। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान, आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान। जरा के मुताबिक खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल सामने आने के बाद स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया। रेड बॉल कैंप में मजीद खिलाड़ियों को तलब किया गया। वेस्ट इंडीज में प्रैक्टिस मैच 18 जुलाई जबकि पहला टेस्ट 25 जुलाई को शेड्यूल।